May I kindly request everyone to take their seats and settle down.
सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञानधारा हो कसंगम देश के स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा विधि सत्यम के मंगल गीत भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित सदकरिता चार पावन साधना संकल्प संयम नवन वैश्विक चेतना नव संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक संपम शेष सुंदर दिव्य भूमि विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक संपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान आलोक संपम ज्ञान का आलोक Moving further, to graciously receive our Honorable Chief Guest of the day, I now request Professor Payal Mago Ma'am, Director, Campus of Open Learning, to present her welcome address. Good morning, everyone. Namaste. Today is a very auspicious day. Distance and Open Learning Institution, School of Open Learning of University of Delhi has completed 62 years of its foundation. And we are honored to have with us our Honorable Chancellor of University of Delhi, who is also the 14th Vice President of Bharat, Shri Jagdeep Dhaliwal. We humbly welcome you, sir. You are a true inspiration and guiding light for our university and the entire nation. We are lucky to have you as the Chancellor of University of Delhi. Honorable Jagdish Dhanwadi has completed his school education from Sainik School, Chittorgarh, and is a lawyer by profession. His life serves as a shining example of unwavering dedication, persistence, and a strong commitment to achieving perfection. Honorable Vice President, sir, is a distinguished and compassionate leader of our nation, coming from a humble background of Chunchunu district, Rajasthan. He was the former governor of West Bengal, and he was also the Union Minister of State for Parliamentary Affairs in 1990. Your presence and actions inspires, influences, and motivates us all. We humbly thank you, sir, for sparing your valuable time for today's occasion. Campus of Open Learning and also University of Delhi is very, very lucky and proud to have a dynamic Vice Chancellor like Professor Yogesh Singh. So on behalf of Campus of Open Learning and School of Open Learning family, we welcome you and thank you for your unwavering support for the institution. I feel really proud to welcome Dean of Colleges, Professor Balram Pani, Director South Campus, Shri Prakash Singh Ji, Registrar Dr. Vikas Gupta, Proctor, Dean Student Welfare, all Deans, Directors and Principals, members of AC, EC and University Code, and officers of the University. पर आज 62nd Foundation Day पे, School of Open Learning के 62nd Foundation Day पे, I will be failing in my duties अगर मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन प्रिंसिपल्स का स्वागत करना चाहूंगी, उन प्रोफेसर्स, उन फैकल्टी मेंबर्स का जो हर संडे को, नेशनल हॉलिडेज को कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स खुलवाकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स को पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस में पढ़ाते हैं।
और ये विद्यार्थी केवल डिग्री ही पास नहीं करते, अपितु कुछ सोल के विद्यार्थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉप भी करते हैं और गोल्ड मेडल भी प्राप्त करते हैं। मैं एसओएल के टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स और स्टूडेंट अचीवर्स जो आज हमारे मध्य में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1962 में केवल 900 स्टूडेंट्स और 3 कोर्सेज से शुरू हुआ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग आज करीब 4 लाख स्टूडेंट्स को 17 से अधिक कोर्सेज में दीक्षित कर रहा है। बीए प्रोग्राम जिसमें सबसे अधिक विद्यार्थी आते हैं, उसके 122 कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। इसके अलावा एमबीए, बीबीए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में चलते हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह के डीयू के वाइस चांसलर बनने के बाद उन्होंने एसओएल पर विशेष ध्यान दिया और इसको एक डिपार्टमेंट की तरह एस्टैब्लिश किया। रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए पहले से ही मौजूद ओएलडीसी ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर को भी एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से सोल भविष्य में हर स्टूडेंट के घर तक पहुंचकर शिक्षा का विस्तार कर सकता है। बहुत तेजी से ओएलडीसी के हाईटेक स्टूडियो से ऑडियो विजुअल कंटेंट का निर्माण हो रहा है, जिसके माध्यम से बहुत ही जल्दी हम स्टूडेंट के घर के फुटस्टेप्स पर वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर पाएंगे। कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस गरीब और वंचित छात्र तक पहुंचना है जो किसी भी कारणवश रेगुलर कॉलेज में आकर पढ़ नहीं पाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन से तारतम्य रखते हुए सोल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने के लिए और सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए कटिबद्ध है। आज एक अंतिम विषय रखकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ओपन लर्निंग सेंटर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ फंडेड है। सरकार से कोई सहायता ना भी लेते हुए इसने पिछले एकेडमिक सेशन में 2 करोड़ की धनराशि से गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है और करीब 900 पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। इसी कड़ी में आज एक अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 2024 और 2025 सेशन से सोल की कोई भी छात्रा, कोई भी गर्ल स्टूडेंट किसी भी ईयर में 8.5 सीजीपीए लेकर अगर परीक्षा पास करती है तो उसे उसके अगले साल की एसओएल की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसी सेशन में जुलाई और अगस्त में हम एक डेडिकेटेड 20 फोन लाइंस का कॉल सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिस पर स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर पाएंगे। सोल का हर स्टूडेंट जॉब रेडी बन सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, इसके लिए हैंड्स ऑन, ऑनलाइन एवं फ्यूचर स्किल सिखाने के लिए भी ओएलडीसी में एक स्किल सेंटर बनाया गया है। हमारा मिशन है टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट फैकल्टी और स्टाफ के माध्यम से हम छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उनके डोर स्टेप तक डिलीवर कर पाएं। और इसी के साथ एसओएल के 62वें स्थापना दिवस पर माननीय उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री जगदीश धनखड़ जी का और कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। Thank you, ma'am. We are delighted to present our dignitaries a token of gratitude and honor. I now request Professor Yogesh Singh sir to felicitate our Honorable Vice President of Bharat and Chancellor University of Delhi.
you everyone. I would now like to invite Professor Yogesh Singh Sir, the dynamic Vice Chancellor of University of Delhi, to address the prestigious gathering and share his experiences. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ, गुड मॉर्निंग का जवाब दो, अच्छी आदत होती है। गुड मॉर्निंग। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्री जगदीप धनखड़ सर, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर अजय जायसवाल, प्रिंसिपल ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, डायरेक्टर्स, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, faculty members, and President of DUTA is also here, President of DUTA, and other respected invited guests. On behalf of University of Delhi, I welcome you all in 62nd Foundation Day of School of Open Learning. On behalf of University of Delhi, I welcome Honorable Chancellor of University of Delhi and Honorable Vice President of Bharat. He is an accomplished and distinguished son of our country. His performance is remarkable and his presence is inspirational. We are very lucky to have such a wonderful Chancellor of University of Delhi. सर जहां गए बहुत अच्छा काम किया, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, एडवोकेट के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं और एक इंसान के रूप में जहां गए बहुत अच्छा काम किया। इनके अंदर एक अच्छा इंसान बैठा है। मैं तरुणा मिश्रा की कविता की कुछ लाइनें कोट करूंगा सर के लिए। किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। ऐसे जिंदगी को समझने वाले, सबको प्रभावित करने वाले हमारे आदरणीय चांसलर सर हैं। मैं उनका एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। As we all know, School of Open Learning was established in 1962 with 900 students and only 2 disciplines, humanities and commerce. But now in 2024, from 900 students to we have about 4 lakh students, and from 2 disciplines to 17 disciplines. What a spectacular performance. I would like to thank Professor Payal Mago and other officers and teachers of campus of Open Learning for this achievement. And the most sought, I asked Professor Payal Mago, then she told me, because I wanted to know the sought after program of School of Open Learning. She said, BA program. We have in BA program 1,80,000 students in BA program. Second is BCom with 60,000, BA Political Science with 40,000 students. And in addition to that, this motto or Dhey Vakya of Campus of Open Learning is very inspiring. Sa Vidya Ya Vimukte. विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो मैं सोचने लगा कि मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या, कि मुक्ति का मार्ग दिखाए। मुक्ति का मार्ग है इंसानियत का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है संस्कार का, करुणा का, कल्याण का मार्ग और संस्कृति का मार्ग। इतना अच्छा जिसका ध्येय वाक्य हो। और ये जो श्लोक है, ये जो लिया गया, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्ते, आया साया परम कर्म विद्यन्या शिल्प नई पुणम। कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, और इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब निपुणता देने वाले काम हैं। तो ये मुक्ति का मार्ग भी दिखा रहे हैं और निपुणता देने का काम भी कर रहे हैं, जैसा इन्होंने स्किल के बारे में बताया। एक बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई।
मैं ऑनरेबल चांसलर साहब को बताना चाहूंगा कि सर दिल्ली में जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं 60% एसओएल के स्टूडेंट्स हैं। कितनी बड़ी बात है, पूरे दिल्ली के चार्टेड अकाउंटेंट 60% एसओएल के हैं। सर एडवोकेट्स का भी हम सोच रहे थे, हमें फिगर्स नहीं मिले, पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि एसओएल के स्टूडेंट रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स बहुत सारे हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सर करिकुलम वही है, वही एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो नॉर्मल 91 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही इवैल्यूएशन का पैटर्न है, और केवल मोड ऑफ एजुकेशन अलग है। और यदि उसमें कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो एक बहुत बड़ी बात है। आज ऐसे कुछ बच्चों से मिलेंगे भी। वी आर प्राउड ऑफ आवर एसओएल एंड परफॉर्मेंस ऑफ एसओएल स्टूडेंट्स। विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा का योगदान, ये जो विषय है, तो पहली बात मन में आती है कि विकसित भारत का मतलब क्या। सबसे पहला लेवल 1 का मतलब है कि राज्य में कोई भूखा न सोए। और मैं भारत की सरकार को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो शुरू करी तो पहला लेवल तो उन्होंने इंश्योर कर ही दिया कि भारत में कोई भूखा न सोए। मुझे एक घटना याद आती है सर, कोई 10-15 साल पुरानी घटना होगी। तो मैं एक दुकान पे गया और घर का सामान खरीद रहा था, ग्रोसरी का। तो एक मजदूर वहां पे आता है, साथ में उसकी एक छोटी बच्ची है जो हाथ पकड़े हुए है, और वो कहता है कि मुझे 100 ग्राम अरहर की दाल दे दो, 100 ग्राम अरहर की दाल दे दो। और दुकानदार जो है वो उसको कहता है कि नहीं, मैं 100 ग्राम दाल नहीं दिया करता, 100 ग्राम में दाल दूंगा नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं दोगे इसको 100 ग्राम दाल? कहता है ये पैकेट्स बनाते हैं हम तो 1 किलो और आधा किलो के, हम ऐसे दाल वाल नहीं दिया करते फुटकर में। तो शिक्षा वहां फेल हो गई कि यदि उसको उसके दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये 100 ग्राम दाल लेके जाएगा, 2 टाइम ये परिवार खाना खाएगा। तो अगर आज भारत की सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया, शायद इस हॉल में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट लोगों की जिंदगी में होता है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं कि वो व्यक्ति 100 ग्राम दाल मांग रहे हैं, आप दाल देने को तैयार नहीं है, तो ये जो स्टेप है कि कोई भूखा न सोए, ये एक लेवल हमने अचीव किया। दूसरा लेवल अचीव करना है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तीसरा है कि $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, भारत सक्षम बने, समर्थ बने। ये सब होगा तो भारत विकसित होगा। और इस सब का सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा। और भारत शिक्षित होगा तो विकसित होगा। और सब तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए ओपन एजुकेशन जो हमारा एसओएल है, एससीओएल है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जिस कारण से हम बहुत सारे लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। So with the help of technology, we may register good number of students. And in this now today's in 21st century, world is globalized, networked world. Online education or open and distance education now have come very close to each other. It is very difficult to differentiate between online and open and distance education. Please just see, when we say open and distance education, our limitation is the NCR region. But when we go for online education, we can go to the entire globe. That is the power of technology. And as Professor Pyle has rightly said, we will take advantage of technology using artificial intelligence or augmented reality, virtual integrated technologies to have better teaching, learning experience to our students. Many good things are happening in open education, anytime, anywhere. मुक्त शिक्षा विकसित भारत बनाने के लिए देश को शिक्षित कर रही है। एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ओपन एजुकेशन इज द की टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू मासेस, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड एजुकेशन टू द मासेस। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। तो शिक्षा तो अनमोल है, जिस भी भाव से जाए, जिस भी तरीके से जाए, व्यक्ति के जीवन में अच्छा करेगी ही। इसी कारण से आज जो फाउंडेशन डे है, आज एसओएल को यह भी सोचना है कि अब के बाद हम और अच्छा क्या करेंगे। अगर आज 4 लाख हैं तो आगे कैसे जाएंगे न्यू वर्ल्ड में, ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन किसी की जिंदगी में अच्छा करेंगे, इस ध्येय के साथ आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वाइस प्रेसिडेंट सर ने, चांसलर सर ने समय निकाला, मैं एक बार पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Thank you sir for your inspiring words. हमारे विद्यार्थी हमारे गौरव हैं। आज सम्मानित होने वाले तीनों विद्यार्थी छात्राएं हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि वे हमारे विद्यार्थियों
को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं नकद राशि देकर प्रोत्साहित करें। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our achievers on stage. First, I would like to invite Ms. Payal Singh. She is a university topper in Bachelor of Library and Information Sciences from batch 22-23, and she is also the recipient of Gopal Krishnan Medal. Congratulations, Payal. Next we have Ms. Nancy Goyal. Next we have with us Ms. Nancy Goyal. She is a university topper in NA Political Science from the batch 21-22. She has also won the Professor C.J. Chapo Award and Karan Singh Medal. Congratulations, Nancy. Our third honoree is Ms. Diksha Dagar from BCom, batch 22-23. She has received the Arjuna Award for Golf in 2023. While she couldn't be here today, we are honored to have her mother, Srimati Sunita Dagar, to accept the award on her behalf. Once again, I congratulate all the young women for their incredible achievements. Moving further, I now request our Honorable Vice President of Bharat to please address the gathering and come on the dais and share the valuable insights and suggestions. आप सभी को मेरा नमस्कार। हैप्पी एक्नॉलेजमेंट। यहां पर आकर बंगाल की याद आ गई।
वहां के राजभवन से अंग्रेजों ने राज किया और काफी समय किया, पर इस स्थान से भी 2 दशक से ज्यादा राज किया। ये वो स्थान है। द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फ्रॉम हियर, और उन्होंने भगत सिंह जी को यहां रखा। मैं जब यहां आया तो मन में एक नई शक्ति का संचार हुआ। भगत सिंह जी के वाक्य, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। हमारा भारत कितना बदल गया। मैं बंगाल में था, उन्होंने वहां से राज किया। योगेश जी का यह कार्यालय है, यहां से 2 दशक तक राज किया। उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सोने की चिड़िया को उन्होंने खत्म कर दिया। और आज का भारत आर्थिक ताकत है, इंग्लैंड से ज्यादा है। मैंने महसूस किया और पीड़ा के साथ, जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना 1989 में, केंद्र में मंत्री बना, तब हमारी अर्थव्यवस्था की साइज लंदन शहर से कम थी, पेरिस शहर से कम थी, और हमारे सोने को हवाई जहाज में डालकर स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया था। तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन के आसपास झोल खा रहा था। और आज का भारत 2-3 साल में जापान, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। यही कारण मुझे यहां खींच लाया कि भारत में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और यही आज का खास विषय है। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, he believes in what was said long time back by a great Greek philosopher before Socrates. He said, the only constant in life is change. उन्होंने ये भी कहा कि एक ही व्यक्ति एक ही नदी में दोबारा पांव नहीं रख सकता, क्योंकि न तो व्यक्ति एक है न नदी एक है। He is changing Delhi University day by day. And changing for the better. इनको 2 सौभाग्य मिले हैं, to be vice chancellor when there is a milestone development in the life journey of a university, centenary celebrations. और दूसरा जो आपका विषय है और आज का विषय है, he has to convert challenges of disruptive technologies into opportunities for growth of education. और ओपन लर्निंग के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। प्रोफेसर पायल माबू, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना।
एक एक शब्द को मैंने ध्यान दिया, पर एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा। पायल जी, आपके नाम में दम है। सबसे पहले जिस छात्रा को इनाम दिया उनका नाम पायल है। Your name is not a liability and this is not a political comment. प्रोफेसर अजय जायसवाल जी, किसी भी विद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, पर वो उसकी आत्मा नहीं है, वो आवश्यकता है, वो सुगंध नहीं है। सुगंध है फैकल्टी। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस DU, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस DU। मैंने श्री प्रकाश जी के लिए कहा कि आप कमाल के व्यक्ति हैं, माता पिता ने क्या नाम रखा है, श्री तो आगे को बोलना ही पड़ेगा। माता पिता ने कोई चांस नहीं लिया। इसी तरह आपके रजिस्ट्रार के माता पिता ने भी इनके संदर्भ में पूरी बात पहले लिखते, विकास करते रहो, डॉक्टर विकास गुप्ता। प्रोफेसर प्रोजेस राहुल, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग। डॉक्टर प्रमोद तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर कैंपस एंड ओपन लर्निंग। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ सीनेट एंड सिंडिकेट, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। आई एम चांसलर ऑल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी and they play a critical role in allowing or not allowing Vice Chancellor to perform. Principals of very distinguished colleges, मैंने तो योगेश जी को कह रखा है कि मैं कहीं शतक मार सकता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के माध्यम से मार सकता हूं। I can visit 100 colleges. The number is now in double digit. मेरे पास 3.5 साल का समय हो रहा है। To monetize time is one of the fundamentals of education. ये कीजिए। योगेश जी ने एक बात की, बड़े उत्साह से कही, उसकी मैं तारीफ करता हूं। पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ग्लोबल हो गई है। योगेश जी, भारत के संदर्भ में टेक्नोलॉजी बियॉन्ड ग्लोब हो गई है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को, और चांद पर लिखा भी क्या, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। ये चंद्रयान 3 की एक खासियत और है जो हर छात्र को ध्यान में रखनी चाहिए, हर छात्रा को ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रयान 2 नहीं होता तो चंद्रयान 3 नहीं होता। चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं था, पर काफी 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 हद तक सफल था। उस समय मैं पंजाब का गवर्नर था। ऐसा नहीं है कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने से चंद्रयान 3 लैंड हो गया, ऐसा नहीं है, संदर्भ दूसरा है। तो साइंस सिटी के अंदर मैं और मेरी धर्मपत्नी 500 बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रात के 2 बजे के आसपास, सितंबर का महीना था, चंद्रयान 2 पहुंच गया, लूनर सरफेस के नजदीक पहुंच गया, पर टच करने से कुछ पहले नहीं कर पाया जो उम्मीद थी। लोगों ने उसको विफलता माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंटिस्ट की वाहवाही की। हम इतना पहुंच गए, पहली बार तो कोई नहीं पहुंचा इतना नजदीक, उनको कई प्रयास करना पड़े इतना पहुंचने में।
ये सफलता की सीढ़ी है। और वो बात हो गई 23 अगस्त 2023 को। हर छात्र छात्रा को ध्यान रखना चाहिए, विफलता किसी चीज का नाम नहीं है। विफलता में आप सफलता की कुंजी देखो, सफलता का अवसर देखो। ये कहा कि मेरे अंदर एक अच्छा इंसान रहता है, सही बात है। ये पूरा वाक्य नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की संसद कार्यवाही का हिस्सा है। तो मैंने प्रामाणिक रूप से बात कही है। मैंने कहा मेरे अंदर डॉक्टर सुदेश धनखड़ बसती हैं। डॉक्टर सुदेश धनखड़ का यहाँ आने का बहुत मन था, क्योंकि जीवन उन्होंने एक तरीके से उनके लिए समर्पण कर रखा है जो योग्य हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ बाधा आ जाती है उनके सामने। वो आज हमारे गांव जा रही है। शिक्षा को कैसे डिस्क्राइब करें, कर चुके हैं पूर्व वक्ता। एक वृद्ध महिला थी, वो अंधी थी, बीमार रहती थी। एक ही लड़का था, उसकी कोई नौकरी नहीं थी, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। भगवान प्रकट हुए, बोला एक वचन मांगो। अब वो अपना स्वास्थ्य मांगे, या आंखों की दृष्टि मांगे, या घर में संपन्नता मांगे, या बच्चे की नौकरी मांगे, या उसकी शादी मांगे, पर वो शिक्षित थी। उसने भगवान से एक ही वचन मांगा, सोने की थाली में हंसता खेलता हुआ बच्चा दिखा दे मुझे। अब देखो सब बातें पूरी हो गई, बच्चा, शादी हो गई, सोने की थाली धन आ गया, दिखा दो आंख आ गई, हैप्पीनेस। उसने शिक्षा मांगी। वो जो बच्चा था ना सोने की थाली में, वो शिक्षा का स्वरूप था। शिक्षा समाज में सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। If we have to bring about equality in society and we have to do away with iniquities, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। मुझे यहां आकर बड़ी प्रसन्नता है। I join all of you in celebrating the 62nd Foundation Day of the School of Open Learning, which is changing the lives of millions and millions across the country. एक विशेष खासियत क्या है? शिक्षा तो सभी जगह मिलती है, पर यह अनूठे तरीके की शिक्षा है। शिक्षा आपकी सहूलियत से, शिक्षा आपकी दिनचर्या में कोई व्यवधान पैदा नहीं करती। इट अलाउज यू टू हैव एक्सेस टू नॉलेज ऑन योर टर्म्स। कहने का मतलब आप आजीविका में भी लगे रह सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं। दिस ओपन लर्निंग इज यूनिक, और ये ओपन लर्निंग हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। प्राचीन भारत शिक्षा और ज्ञान का विश्व केंद्र रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि ज्ञान का मतलब भारत, शिक्षा अर्जन करना मतलब भारत। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक क्या पहचान थी? दुनिया का मुख्य शिक्षा का केंद्र। मैं ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा। सोचिए 13वीं सदी के बाद बदलाव क्यों आया, और अब
बदलाव क्यों करवट ले रहा है और हमें कितने गंभीर होने की आवश्यकता है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुंज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि की प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं। आर्यभट्ट, पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो ज्ञान का भंडार नहीं हो। भारत की प्राचीन पद्धति में हमें दो खासियतें नजर आती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आप अनौपचारिक हैं, तब भी अनौपचारिक होता था। औपचारिक शिक्षा मंदिर में होती थी, आश्रमों में होती थी, गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये शिक्षा के केंद्र थे। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जब भारत के संविधान की आप मूल प्रतिलिपि देखेंगे, मूल देखेंगे, उसमें जो चित्र है वो गुरुकुल का है। उसमें 22 चित्र हैं, गुरुकुल का है। उसमें फंडामेंटल राइट्स वाले में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या आ रहे हैं, वो है तो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रतिमा दी गई है, कुरुक्षेत्र में अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुकुल हमारी औपचारिक शिक्षा का माध्यम था। आश्रम थे, शिक्षा के मंदिर थे, पर इसके अलावा परिवार शिक्षा देता था, अनौपचारिक। पुरोहित देते थे, पंडित देते थे, सन्यासी देते थे। त्योहारों का प्रसंग आता तो हम सीखते थे। आज ये काम आप बखूबी कर रहे हैं, संस्थागत तरीके से कर रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टू फॉर्मलाइज दिस इनफॉर्मल एजुकेशन in an informal manner. आपने अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में एक नई सुगंध डाल दी है, इसको जीवंत कर दिया है और आपने इसको सम्मानपूर्वक कर दिया है। आपने इसको औपचारिक शिक्षा के समकक्ष कर दिया है। ये मैंने यहां देखा है इनको देते हुए। हमारे देश की सोच है, विश्व में कौन सा देश कह सकता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार रहा हो। वेद, उपनिषद, पुराण, संस्कृत, आयुर्वेद, योग आदि विषयों का भारत स्रोत रहा है और हम हमारी संस्कृति को दुनिया में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। Rising about caste, creed, religion, culture, country. In June, the longest day, we have Yoga Day. प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इनको ग्रहण किया। हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है वासुदेव कुटुंबकम। जब हमने G20 का नेतृत्व किया, G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत एक अलग है। खुशी की बात यह है, लंबे अंतराल के बाद, मैं कहूंगा सदियों के बाद, क्योंकि नालंदा तो 13वीं सदी के बाद नहीं रही थी, सदियों के बाद आज का भारत तीव्र गति से उस गौरव के रास्ते पर चल रहा है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है 2047 में हम विकसित भारत देखेंगे। हम नए बच्चे रहेंगे। आज का भारत पूर्ण विकसित होने के लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा पर है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें हर कोई आहुति दे रहा है और संपूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी।
जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा हो। अति प्रसन्नता का विषय है कि आपकी संस्था दी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसको एक नया आयाम दे रही है, इसमें कारगर आहुति दे रही है। आपका योगदान अद्वितीय है, क्योंकि आप उन लोगों को भागीदार कर रहे हैं जो भागीदार होना चाहते थे पर किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। यू हैंड हेल्ड दोज पीपल who were keen to acquire education. They had urgent passion for education. They were in mission mode to acquire it. उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, उनके लिए जो टनल थी, रोशनी नहीं दिख रही थी, आपने वो रोशनी दिखाई है और वो देश और दुनिया को रोशनी दिखा रहे हैं। This institution, friends, is beyond the traditional classrooms, and it is serving more than 4 lakh students across 17 disciplines, as was indicated by the learner vice chancellor. अब सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा है। शिक्षा से बड़ा कोई मौलिक अधिकार नहीं हो सकता और शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आज हम भारत में क्या देख रहे हैं, एक अद्भुत दृश्य परिवर्तन हो रहा है, और वो है शिक्षा का अधिकार खासतौर से आपके माध्यम से जमीनी हकीकत है। कार्यक्रम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुरूप बनाए गए हैं और ये उनके सामान्य कामकाज में किसी तरीके से बाधक नहीं होते। इससे बड़ी मदद कोई हो नहीं सकती। Friends, I congratulate you. This is a commendable step towards easy access to education, providing opportunities for open learning to that segment which is keen but otherwise handicapped. You have removed that handicap. You have overcome that hiccup, and now it is being fast-tracked. इसीलिए मैं कहता हूं, आज के दिन इससे बेटर कोई थीम नहीं हो सकती विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा योगदान। इट इज फाउंडेशन, इट इज इनएलिएनेबल, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू ग्रोथ। बिना इसके नहीं होता। हमने वो जमाना देखा है, बिना पूछे पढ़े लिखे होक नहीं कहते थे अंगूठा लगा दो। दैट अंगूठा कल्चर, अंगूठा अभिशाप खत्म हो गया है। जब कोई कहता है आज गलती से अंगूठा लगा दो, तो हमारी माताएं बहनें कहती पहन दे। शिक्षा उस ताले की कुंजी है जिसके माध्यम से प्रगति मिलती है, समृद्धि मिलती है और सशक्तिकरण के द्वार खुलते हैं, और अपने देश में खुल गए हैं। शिक्षा ही तो वो कारण है कि दुनिया के हर कोने में आज, दुनिया की हर बड़ी संस्था में आज भारत का दिमाग काम कर रहा है। नजर फिराकर देख लो, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं देख लो, बड़े कॉर्पोरेट्स के टॉप बॉसेस देख लो, भारतीय दिमाग का करिश्मा ही हो रहा है। आवश्यकता थी एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे उन्मुक्त वातावरण की जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां अपनी प्रतिभा दिखा सकें। फ्रेंड्स, इट्स अ डिलाइटफुल सिचुएशन that we have today in the country an ecosystem where every young boy and girl can exploit his or her talent, potential, realize his or her dreams and aspirations. ऐसा पहले नहीं था, और ऐसा होने के लिए बाधा क्या थी, और वो बाधा बड़ी खतरनाक थी। सबसे बड़ी बाधा थी कुछ लोग औरों से ज्यादा अपने आप को मानते थे। कानून की समानता नहीं थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो इलीगलनेस, द कॉन्स्टिट्यूशन राइट।
लोगों के मन में ये आ गई थी, इनका कानून क्या बिगाड़ेगा। हताश हो चुके थे कि ये तो कानून से ऊपर है, कानून का शिकंजा इन तक पहुंच ही नहीं सकता। और फिर उनमें एक हीन भावना दी थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक हैं और हमें यह देखना पड़ रहा है। आज के दिन ये हालात नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एवरीवन इज अकाउंटेबल टू लोअर लीगल प्रेमिसेस एंड लीगल प्रोसेसेस। और ये आज के दिन जमीनी हकीकत है। नो वन इज अबाउट लॉ, एवरीवन इज अकाउंटेबल टू लॉ। ये हमारे यूथ माइंड्स के लिए, इंप्रेशनल माइंड्स के लिए गीता के ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक हो गया था कि भाई नौकरी और अपॉर्चुनिटी और कॉन्ट्रैक्ट सिफारिश से मिलेगा। सिफारिश का जो सिक्का है उसका दूसरा भाग है करप्शन, कि बिना भ्रष्टाचार के आपका काम नहीं होगा। हमारे जो संस्थान थे, पावर कॉरिडोर्स, दे वर इन्फेस्टेड बाय करप्ट एलिमेंट्स, पावर ब्रोकर्स, लाइजन एजेंट्स। उनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो फाइल ही खत्म हो गई, सब डिजिटल हो गया। पावर कॉरिडोर्स have been duly sanitized. Even income tax assessment is faceless. और आपने कहा इसके बारे में भी कि आपके छात्र छात्राएं जब परीक्षा देती हैं तो कॉम्पीट करते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन वाले हैं, चेक करने वाले को नहीं पता कौन कहां से आया। सो फ्रेंड्स, जीरो अकोमोडेशन फॉर करप्शन, ये न्यू नॉर्म है। लोग एडजस्ट हो गए थे कि हालात कभी नहीं बदलेंगे, पर हालात बदल गए। तीसरा बड़ा बदलाव जो शिक्षा की वजह से आया है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। इसमें आम आदमी का योगदान है, आम आदमी की मेहनत और पसीना है। वो तो पहले भी था। बदलाव क्या आया? सकारात्मक नीति, सकारात्मक सोच, व्यापक हैंड होल्डिंग। लोगों को अंदाजा नहीं है, पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जाकर देखो, मुद्रा स्कीम ने क्या कर दिया है। महिला की ताकत देखो, खुद काम करती है, दो को काम दे रही है। कभी सोचा था देश में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि जो बैंक अकाउंट खुलाने से डरते थे, बैंक उनके घर पहुंचा और नतीजा 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला। शिक्षा दे चलता। ऐसे मामले में जो स्वाभाविक रूप से कुछ छूट जाते थे, वो मानते थे हमारा तो मौका गया, हमारी तो बस छूट गई। उनको मौका आप दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मौका दे रहे हैं। एंड दैट इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट। माय कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। एक बात जिस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो और उसका विशेष कारण है कि इंडिया इज अमंग्स्ट द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड that are focusing on disruptive technologies. 5-7 ही देश हैं और हमारा देश उसमें है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मशीन लर्निंग मैंने कहा हो, ब्लॉकचेन हो, यहां तक कि 6G के मामले में भी, इसके कमर्शलाइजेशन के अंदर भी 2025 से 30 तक हम है। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भारत ने सबसे पहले पहल कर 6,000 करोड़ का एक कमीशन बनाया, ग्रीन हाइड्रोजन का 19,000 करोड़ का बनाया। इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये आज के दिन हमारे यंग माइंड्स के लिए अवसर का अनूठा मौका है। आपने जो हैंडीकैप लोगों की मदद की है,
They are not physically handicapped. They were not handicapped by their design, passion and mission. They were handicapped कि हम क्या करें, हमें डिग्री कैसे मिले, आपने रास्ता दिखाया. उसी तरीके से नई चुनौती देश में है, और नई चुनौती है कि हर कोई सरकारी नौकर बनना चाहता है. उसके लिए वो अंधाधुंध होकर कंपटीशन के लिए लगा हुआ है. वो एक साइलो में रह रहा है. हर व्यवस्था में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होगी. उनको ये नहीं पता है कि आपके पास कितने और मौके हैं जो आप देश और दुनिया को बदल सकते हैं. आपको एक सिंपल चीज बताता हूं. जब इसरो गया, इसरो ने दुनिया में नाम कमाया है. हम दूसरे देशों के सैटेलाइट स्पेस में डालते हैं. उन्होंने विकसित देश नहीं, वो देश जो तकनीकी में हमसे आगे हैं, बिकॉज वी गिव गुड वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. मैं IIT का बड़ा सम्मान करता हूं, पर इसरो के अंदर साधारण कॉलेजेस के बच्चे हैं. इन संस्थानों में से एक भी नहीं है. यहां से संदेश जाना चाहिए छात्रों के लिए, विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए, कि लेट देम नॉट बी ओनली इन द ग्रूव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. दे कैन हैव स्टार्टअप्स, दे कैन कंट्रीब्यूट विद द बेस्ट इन इकोनॉमी, इन रिसर्च, इन इनोवेशन, इन एंटरप्राइज. और मैं समझता हूं वो समय दूर नहीं है कि ऐसा होकर रहेगा. नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई, क्रांतिकारी कदम है. 3 दशक के बाद आया. मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, हमसे भी राय ली गई. इनपुट्स वर सेक्योर्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल. तब जाकर इसका इवोल्यूशन हुआ. आप तो ये काम पहले से ही कर रहे थे, अब ये काम और भी सुलभ कर दिया है. तो आप तो ये मानकर चलिए योगेश जी और पायल जी कि टेक्नोलॉजी का विकास और नई शिक्षा नीति ये आपके हाथ मजबूत करने के लिए हुई है कि स्कूल ऑफ लर्निंग निरंतरता से आगे बढ़ती रही. भारत आज महानता के शिखर की ओर अग्रसर है, कोई शक नहीं है इसमें. निवेश, शिक्षा, पर्यटन, अंतरिक्ष अन्वेषण और बहुमुखी प्रगति का केंद्र है. दुनिया के बड़े संस्थान पहले हमें चेताते थे, हमें समझाते थे कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी हो. आज सीखने आते हैं. When economy is facing headwinds, the terrain is difficult. India GDP rise amongst large economies is the highest. ये आसान नहीं है. Our digital penetration, given our diversity, given far-flung areas, given different dialects, it is ahead of developed nations. वर्ल्ड बैंक ने तो यहां तक कहा कि भारत ने जो करिश्मा 6 साल में किया है वो साधारणतः 47 साल में भी संभव नहीं है. ये हमारे देश की अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि हम सब एक मैराथन मार्च के हिस्सा हैं. हम सब एक महान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं. इस मैराथन मार्च और महान यज्ञ में पूर्ण आहुति 2047 में दी जाएगी, जब भारत अपने आजादी का शताब्दी पर्व मना रहा होगा. और तब भारत उस स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर भारत सदियों तक, सदियों पहले रहा था. बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. Your impactful words have truly inspired all of us today. I now request you all to please
national anthem.